Hello friends. So now I am back here with a new lecture. So again I am discussing a topic which is related to Indian polity, and today I am going to discuss the electoral reforms. So that is a very important topic as far as your exam is concerned, means exam is concerned, because this is a topic which is long pending and due since a long time, and this topic definitely helps you not in your mains exam but in writing your paper 2 questions, but also may assist in you in your essay writing as well. So I'll be taking a series of lecture on electoral reform. So that will be 2 or 3 lectures I'll be taking. That will depend on the content which I'm going to discuss. So till now I made this lecture only. So it is the part one of electoral reforms, and in this uh, part I am going to discuss how to give more authority to election commission so that it can take decisions on its own, means to increase the autonomy of the election commission, as well as to to give more teeth to election commission so that it can punish as well as it can take harsh decisions on those people or on those things or occasions where it needs to take those decisions, so that it can punish the violators of the rules, and uh, uh, the elections, so that it can conduct free and fair elections, which is being envisaged in our constitution. Okay, so I'll be starting this lecture. Background of election commissioners. So I'll be taking giving you brief of the background of the election commission and the commissioners which who are handling the election commission. So originally the commission had only one election commissioner, as you already know, but after 1989, so Election Commissioner Amendment Act 1989, it has been become a मल्टी मेंबर बॉडी. सो मल्टी मेंबर बन गया. स्टार्टिंग में एक कमिश्नर था, देन ये 89 के बाद मल्टी मेंबर बॉडी हो गया. मैं आपको इसमें ऐड कर दूं, ये इसमें स्लाइड में नहीं दिया हुआ है बट मैं आपको ऐड कर दूं कि उसके बाद ये फिर 91 के बाद ये फिर 89 से 91 तक ये मल्टी मेंबर रहा. 91 से ये फिर सिंगल मेंबर हो गया और 93 में फिर ये मल्टी मेंबर हो गया. तो 2 साल और ये फिर सिंगल मेंबर रहा था और 93 में अगेन it became a multi-member body. Okay, and which is the article which is related to the conduct of free and fair elections, and which gives the powers to the election commission to conduct free and fair elections in the country. That is article 324. So the main objective of this article is to constitute an independent election commission which can conduct free and fair elections to the parliament and state legislatures. ओके, जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स के इलेक्शन है कंडक्ट करता है. इट लेज, अब ये आर्टिकल और क्या कहता है, इट लेज डाउन दैट द इलेक्शन कमीशन शेल कंसिस्ट ऑफ द इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सीईसी. ठीक है. So there will be one CEC and such number of other election commissioners, if any, as the president may from time to time fix. यानी कि ये आर्टिकल कह रहा है 324 कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स भी होंगे जो प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स करेंगे. इनकी प्रेसिडेंट खुद डिसाइड करेंगे, खुद मतलब कि ऑन दी बेसिस एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बट प्रेसिडेंट फिक्स करेंगे कितने इलेक्शन कमिश्नर्स. कॉन्स्टिट्यूशन ये अथॉरिटी देता है कि एग्जीक्यूटिव को कि वो फिक्स कर सके कि हाउ मेनी इलेक्शन कमिश्नर्स इट वांट टू अपॉइंट इन द इलेक्शन कमीशन, बट देयर विल बी वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर. सो आर्टिकल 324(2) जो है, इट डील्स विद द प्रोविजंस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स. यानी कि जितने भी इलेक्शन कमिश्नर्स हैं जो होंगे इलेक्शन कमीशन में, उनकी अपॉइंटमेंट
को 324 आर्टिकल 324(2) ब्रैकेट में 2 यानी कि पॉइंट नंबर 2 बताता है, प्रोविजंस बताता है, ड्यूरिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। ये साथ में ये भी कहता है कि अदर इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर शैल एक्ट एंड वर्क एज द चेयरमैन ऑफ इलेक्शन कमीशन। ठीक है, चेयरमैन कौन होगा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा। एंड ड्यूरिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, मतलब अगर अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हो गए तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होगा वो इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन होगा। आर्टिकल 324(2) यानी कि प्रोविजन बताता है द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर्स। नाउ 324(4) क्या बताता है? द प्रेसिडेंट अपॉइंट दी रीजनल कमिश्नर्स। अब प्रेसिडेंट रीजनल कमिश्नर्स भी अपॉइंट कर सकते हैं एज पर द नेसेसिटी आफ्टर कंसल्टिंग विद द इलेक्शन कमिश्नर। तो इलेक्शन कमिश्नर यानी कि जो इलेक्शन कमीशन में जो कमिश्नर्स हैं उनको कंसल्टेशन करके रीजनल कमिश्नर भी अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर्स। आर्टिकल 224(4) बताता है। 324(5) क्या बताता है? प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसाइड दी, यानी कि प्रेसिडेंट एम्पावर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन से टू डिसाइड दी कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स। तो उनका कंडीशंस ऑफ सर्विस और टेन्योर, कितना टेन्योर होगा और कंडीशंस क्या होंगी सर्विस की, यानी कि रिमूवल का प्रोसेस क्या होगा, वो सब चीज़ें 324(5) बताता है। और टेन्योर क्या होगा ऑफिस का, वो सब बताता है, एज वगैरह जो भी है। बट दीज रूल्स, और ये रूल्स, बट लेकिन ये जो रूल्स हैं आर सब्जेक्ट टू लॉ, एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। लेकिन ये जो प्रोविजन है मैं आपको ये बता दूं, इसमें ये मिसिंग है कि 324(2) में जो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है वो उसमें केवल यही बताता है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, बट प्रेसिडेंट अपॉइंट करने का प्रोसेस क्या है वो नहीं बताता, केवल प्रोविजनिंग है कि द इलेक्शन कमिश्नर्स विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। बट व्हाट इज द प्रोसेस टू अपॉइंट द इलेक्शन कमिश्नर्स, दैट सो आर्टिकल 324(2) इज साइलेंट ऑन दैट प्रोविजन। एंड 324(5) ऑल्सो कंडीशन ऑफ सर्विस और टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ द कमिश्नर जो है प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे, बट प्रेसिडेंट कैसे डिसाइड करेंगे इसके बारे में 324(5) साइलेंट है। तो ये दोनों आर्टिकल साइलेंट है, और ये इन दोनों आर्टिकल्स में कहा हुआ है कि सब्जेक्ट टू एनी लॉ। तो जब तक कोई लॉ नहीं बनेगा तब तक प्रेसिडेंट करेंगे ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है ना, प्रेसिडेंट करेंगे, कोई प्रोसेस नहीं डिफाइन है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस डिफाइन नहीं करता है। तो प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कोई बता देंगे कि इसको अपॉइंट करना है तो अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट कर देंगे जब तक कोई कानून नहीं बनता। तो सब्जेक्ट टू एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, तो इसके लिए कानून बनाए पार्लियामेंट, तो फिर कानून के हिसाब से प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट कर पाएंगे, और प्रेसिडेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस और टेन्योर ऑफ ऑफिस डिसाइड कर पाएंगे एज पर दी प्रोविजंस ऑफ द लॉ विच इज मेड बाय द पार्लियामेंट। अब सेक्रेटरीट जो है ना कमीशन, ये सब दैट इज लोकेटेड इन न्यू। छोटा सा बैकग्राउंड मैंने आपको बताया, 324 आर्टिकल गवर्न करता है। अब इश्यूज हैं कुछ अपॉइंटमेंट में, मैं आपको बताता हूँ क्या अपॉइंटमेंट में क्या इश्यूज हैं। जैसे मैंने बताया कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, बट कोई प्रोविजन अभी तक डिफाइन नहीं किया है। तो ग्लोबल प्रैक्टिस क्या है? यूएसए, साउथ अफ्रीका, कनाडा में देयर इज अ मैकेनिज्म फॉर आउटसाइड कंसल्टेशन विद एक्सपर्ट बॉडी फॉर मेकिंग सुटेबल अपॉइंटमेंट्स। तो एक्सपर्ट बॉडी के साथ कंसल्टेशन का प्रोविजन है, तभी अपॉइंटमेंट करना है इलेक्शन कमीशन में, जो कि अभी नहीं हो रहा है। अभी क्या होता है ना, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट कर देते हैं ऑन दी एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल मिनिस्टर, देयर इज नो डिफाइंड प्रोसेस एज पर द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। लेकिन इन कंट्रीज में कोई एक कंसल्टेशन करते हैं एक्सपर्ट बॉडी के साथ अपॉइंटमेंट से पहले। तो देर इज नो प्रिस्क्राइब प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कोई मैंने कहा कोई प्रोसीजर नहीं है। एंड इलेक्शन कमिश्नर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट डेट द अपॉइंटमेंट शैल बी डन बाय द प्रेसिडेंट, बस यही बोला है कि अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेंगे, कोई प्रोसीजर मेंशन नहीं है। अंडर आर्टिकल 324(2) द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट द सीसी एंड ईसी बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस मेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। जैसे मैंने आपको बताया, देयरफॉर इट इज द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट सीसी एंड ईसीज। प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर है कि वो उनको अपॉइंट करेगा, बट प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं करता है, और कोई कानून अभी तक नहीं बनाया है पार्लियामेंट ने भी। However, according to Article 324(5), the Parliament has the power to regulate the terms of conditions of service। पार्लियामेंट के पास पावर है, उसमें भी 324(2) में भी है और 324(5) में भी है। पार्लियामेंट हैज द पावर टू रेगुलेट द टर्म्स ऑफ कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स। इट इज अंडर दिस आर्टिकल दैट द पार्लियामेंट हैज लॉज टिल डेट। पार्लियामेंट ने कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस को रेगुलेट करने के लिए तो लॉ बनाया है, बट 324(2) के अंतर्गत कोई लॉ नहीं बनाया है।
in which the parliament can establish a selection committee for regulating the appointments of election commissioners. ठीक है ना, इनके अपॉइंटमेंट के लिए जो रेगुलेट करने का जो प्रोसीजर है वो पार्लियामेंट ने नहीं बनाया, बट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस को रेगुलेट करने के लिए लॉ बनाया है पार्लियामेंट ने. द इशू वाज डिबेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. So it is the executive power of the president to appoint CEC and EC. Okay, so under Article 324(2), the procedure has not been defined, but it is written that the manner of appointment of election commissioners will be done by the president. So appointment will be done by the president, but no prescribed procedure for appointment will be described in the article, but it is written that subject to the any law made by the parliament. So parliament can make any law which can detail the procedure, okay, to regulate the appointment of the election commissioners. Now, according to Article 324(5), the parliament has the power to regulate the terms and conditions of service and tenure of ECs. It is under this article that the parliament has made laws, but not under Article 324(2), which I have already explained. Now, the issue was debated in the Constituent Assembly, which finally left over to the government to decide the appointments. So, it was already debated in the Constituent Assembly, and the Constituent Assembly has left to the government to decide the manner of appointment of the election commissioners. So, for the same, the Parliament has enacted the Election Commission, Conditions of Service of Election Commissioner, and Business Act 1991 was passed to determine the conditions of service. So I have already explained it. As per Article 324(5), Parliament has enacted this law to determine the conditions of service of the CEC and the election commissioners, and to provide for the procedure for transaction of business by the ECI. So to provide for the procedure for transaction of business, how the election commissioner will going to perform its task. So transaction of business, the procedure for transaction of business will be explained by this act. However, the parliament at that time decided not to put any collegium system. So no collegium system has been put for appointment of the election commissioner by this act. So it has been missed altogether. So this is the issue in appointment. Now what are the reforms? So this is the main issue, which is not main but one of the issue. Now for this one we will discuss what are the reforms which are required in Election Commission of India. Now there must be you must understand one more thing, that as per Article 324, the Chief Election Commissioner can be removed by the President on the same grounds as on the same grounds as has been done for the Judge of the Supreme Court. So, but the election commissioners can be removed on the whims and fancies of the Chief Election Commissioner, and done by the President, but on the whims and fancies of the Chief Election Commissioner. But Chief Election Commissioner can only be removed on the same ground and on the same manner as the procedure and of removal of the Judge of the Supreme Court. So it is one of the reform required, that there must be similar election and removal procedure for CEC and ECs, and they must exercise the same powers unless specifically prescribed by a law. So unless there is a law which prescribes that this much is the difference between the the functionality of the Chief Election Commissioner and the election commissioner, so unless a law has defined this the difference between the functions of the CEC and ECs, unless that is defined, they must exercise the same powers, and there must be similar election and removal procedures for CEC and ECs. Article 324(5) of the Constitution must be amended to equate the removal procedures of the two chief election commissioners with that of the Chief Election Commissioner. So आर्टिकल 324(5) के तहत में ये दिया गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से रिमूव होगा, और इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव ऑन द विंस एंड फैंसीज ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर. सो ये अमेंड होना चाहिए आर्टिकल. दस इक्वल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन शुड बी गिवन टू ऑल मेंबर्स ऑफ ECI इन मैटर्स ऑफ रिमूवेबिलिटी फ्रॉम ऑफिस. तो एक तो ये रिफॉर्म हम कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन में होना चाहिए, इससे पावर्स इलेक्शन कमीशन की बढ़ जाएंगी. अभी इलेक्शन कमिश्नर्स जो होते हैं ना, वो केवल रिकमेंडेशन ऑफ CEC पे ही रिमूव कर दिए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट, जो कि खत्म हो सकता है अगर हम इसको अमेंड कर दें इस आर्टिकल को. तो उसके अलावा और कोई कानून भी नहीं है, मैं आपको ये बता दूं. 324(5) में कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस लिखा है,
ठीक है, दैट इज 6 years एंड 65 years, विच एवर इज लेस, ये मैं आपको बता दूँ। उसके अलावा अपॉइंटमेंट थ्रू कोलिजियम होना चाहिए और एनी अदर सिस्टम एज डिस्कस इन कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट, ये डिस्कस हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, कैन ब्रिंग मोर ट्रांसपेरेंसी इन द अपॉइंटमेंट प्रोसेस। इवन द लॉ कमीशन in its 255th report on electoral reforms for ensuring greater autonomy to the ECI recommended for the constitution of a selection committee. So law commission जो था उसने भी रिकमेंडेशन ऑलरेडी दी है कि एक कोलेजियन सिस्टम और एक सिलेक्शन कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन करना चाहिए फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर्स, सीसी एंड इलेक्शन कमिश्नर्स बोथ. The appointment of all the election commissioners, including the CC, must be made by the president in consultation with the 3 member. अब इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है कि 3 member कोलिजियम हो सकता है या सिलेक्शन कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन द लोकसभा इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ एंड द चीफ जस्टिस. तो कोलेजियम होगा जिसमें ये 3 members होंगे, तो ये कोलेजियम अपॉइंट करेगा. एलिवेशन ऑफ एन इलेक्शन कमिश्नर, और क्या कह रहे हैं, एलिवेशन ऑफ एन इलेक्शन कमिश्नर मस्ट बी ऑन द बेसिस ऑफ सीनियोरिटी. तो जब सीईसी का अपॉइंटमेंट कर रहे हो तो किसी भी इलेक्शन कमिश्नर का एलिवेशन आपको करना है तो आपको सीनियोरिटी के बेसिस पे करना है, अनलेस द 3 member कोलेजियम कमेटी उस कमिश्नर को अनफिट पाए, नहीं तो वो उसको ही सीनियोरिटी के बेसिस पे ही उसको ही अपॉइंट कर सकती है एज अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर. अमेंडमेंट मस्ट बी मेड इन द इलेक्शन कमीशन, जो भी है टू रिफ्लेक्ट दिस. तो इलेक्शन कमीशन की जो कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर एंड ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट है, इसके अंदर भी अमेंडमेंट कर सकते हैं. और एक कॉलेजियम सिस्टम, ये जो है कॉलेजियम सिस्टम, मतलब कॉलेजियम सिस्टम मस्ट बी देयर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल द इलेक्शन कमिश्नर्स. सो कॉलेजियम सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंटमेंट के लिए, तो इसको अमेंड कर सकते हैं. अभी केवल ये एक्ट जो है कंडीशंस ऑफ सर्विस बताता है कि कितने साल सर्विस होगी और क्या एज होगी और कैसे एंड उनकी सिक्योरिटी कैसे होगी टेन्योर की. तो ये एक्ट ये सब चीज़ें बताता है. इसके अंदर कॉलेजियम सिस्टम भी डाल के उनके इलेक्शन, उनके अपॉइंटमेंट को रेगुलेट कर सकते हैं. उसके अलावा और अदर रिफॉर्म्स क्या चाहिए इलेक्शन कमीशन में? पावर टू कैंसिल इलेक्शन इन केस ऑफ ब्राइबरी ऑफ वोटर्स. अब एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको इसमें समझा दूं थोड़ा सा. आपको पता है कि कहीं कोई पोल कैप्चरिंग हो जाती है, पोल कैप्चरिंग कह रहा हूँ, बूथ कैप्चरिंग हो जाती है, तो इलेक्शन कमीशन वहाँ पे पोल कैंसिल कर सकता है, उसको ये पावर दी गई है इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट. बट ये सेंटर को कहता है, इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि एक 658B रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में लेकर आए ऑन दी लाइन्स ऑफ सेक्शन 58 है. 58 है क्या कहता है कि इलेक्शन कमीशन के पास राइट है टू एडजर्न और काउंटरमेंट मतलब कैंसिल द इलेक्शंस इन केस ऑफ बूथ कैप्चरिंग. तो सिमिलरली 58B लेकर आना चाहिए, शुड अलाउ सिमिलर पावर्स इन केस ऑफ ब्राइबरी. अगर वोटर्स को ब्राइबरी दी जा रही है किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो वहाँ पे इलेक्शन कमीशन वो इलेक्शन कैंसिल कर सके. तो ऐसी पावर्स इलेक्शन कमीशन मांग रहा है गवर्नमेंट से कि वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 को अमेंड करे. बट लॉ मिनिस्ट्री ने इस रिक्वेस्ट को शॉट डाउन कर दिया, सेइंग बूथ कैप्चरिंग एंड ब्राइबरी आर नॉट कंपेरेबल. दोनों कंपेरेबल नहीं है. क्यों नहीं है? एलिगेशंस ऑफ ब्राइबरी को हमेशा प्रूव करना पड़ता है, इन्वेस्टिगेशन और प्रूफ होना चाहिए इसका, ठीक है ना. बिसाइड द कमीशन हैज बीन डीलिंग विद सच सिचुएशन, ऑलरेडी कमीशन के पास 324 में पावर दी गई है कि वो ब्राइबरी ऑफ वोटर्स अगर होता है तो वो इसको टैकल ऑलरेडी कर सकता है. देयरफॉर स्टेटस को ही बना के रखते हुए ये जो रिक्वेस्ट थी 58B इंट्रोड्यूस करने की रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, ये गवर्नमेंट ने कंसिडर नहीं की. बट हम ये बोल रहे हैं कि ये गवर्नमेंट को कंसिडर करनी चाहिए, क्योंकि ब्राइबरी ऑफ वोटर्स बहुत ही आम है इलेक्शंस में, और इलेक्शन कमीशन जो होता है इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा नोटिस देता है किसी भी कैंडिडेट को कि भाई ये ब्राइबरी ऑफ वोटर्स हो रहा है, तो आपको नोटिस दिया जा रहा है. केवल नोटिस तक रहता है, वो नोटिस का जवाब दे देते हैं, तो उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं करता इलेक्शन कमीशन, क्योंकि उसके पास वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में वो पावर नहीं दी गई है. तो अगर वो दी जाती है तो कम से कम ब्राइबरी ऑफ वोटर्स हमारे देश में बंद हो सकती है. तो ये बहुत ज़रूरी है. उसके अलावा पावर ऑफ कंटेम्प्ट.
पावर ऑफ कंटेम्प्ट भी इलेक्शन कमीशन मांगा था, इलेक्शन कमीशन अब नहीं मांग रहा है, बट पहले मांगा था 2017 में, 16-17 में। तो EC sought to empower itself to punish anyone being disobedient and discourteous towards his authority। मान लीजिए आप कोई भी इसके डिसीजन का या कोई भी इसके अनाउंसमेंट का डिसरिगार्ड करते हो, तो इलेक्शन कमीशन हैज द अथॉरिटी टू टू पनिश यू फॉर इट्स कंटेम्प्ट। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे EC को ये पावर दी गई है, जैसे फिलीपींस, घाना, लाइबेरिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया एंड कीनिया। The proposal is to amend the RPA Act 1951, RPA by 1951 by inserting Section 169A to extend the provision of contempt of court Act 1951 1971। तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, आपको पता है कोर्ट के पास ये जुडिशियल पावर होती है। इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन ही मांग रहा है कि ये मेरे को दी जाए ये पावर, ताकि मैं भी कंटेम्प्ट अगर मेरा हो तो मैं भी पनिश कर सकूं परपेट्रेटर्स को या वायलेटर्स को। हाउएवर देयर इज अ बेसिक डिफरेंस, इसको भी गवर्नमेंट ने शॉट डाउन कर दिया इस प्रपोजल को, कहते हुए कि देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन इलेक्शन कमीशन एंड कोर्ट्स। जो कोर्ट्स हैं दे आर नेवर हर्ड इन पब्लिक, वो कभी पब्लिक में अपना डिसीजन अनाउंस नहीं करती हैं। नेवर हर्ड इन पब्लिक यू वांट टू डिफेंड देयर जजमेंट्स, और कभी वो जजमेंट देती हैं तो वो अपना जजमेंट को डिफेंड नहीं करती हैं पब्लिक में। वो कभी आके कोई मीडिया इंटरव्यूज या कोई मीडिया में कुछ ब्रीफिंग नहीं होती है, बट कमीशन मीडिया में कभी भी आके अपने जो भी पॉइंट्स हैं उनको रख सकता है और अपने पॉइंट्स को क्लैरिफाई कर सकता है, ठीक है ना, डिस्कशन से, डायलॉग से क्लैरिफाई कर सकता है। बट कोर्ट ये नहीं करती, इसलिए कोर्ट इवन देन द पावर ऑफ कोर्ट, और उसके बावजूद कोर्ट की पावर को क्वेश्चन किया जाता है। ऑल्सो इलेक्शन कमीशन ऑफन रिस्पॉन्ड्स रोबस्टली व्हेन एलिगेशंस अगेंस्ट इलेक्शंस डेवलप। और जब भी इलेक्शंस में कोई एलिगेशन लगती है कि यहाँ पे इस तरीके से ठीक से कार्रवाई नहीं हुई, या इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई फेवरेटिज्म या कोई नेपोटिज्म का आरोप लगता है, या फिर किसी कैंडिडेट के लिए बायसनेस का आरोप लगता है, तो इलेक्शन कमीशन ज़्यादा अच्छी तरीके से रोबस्टली एक्ट करता है और अपने आप को प्रूव करता है कि ये अनबायसली काम करता है टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो ये देखा जाता है हमारे देश में कि इलेक्शन कमीशन ऑफन रिस्पॉन्ड करता है रोबस्टली व्हेन एलिगेशंस अगेंस्ट इलेक्शंस डेवलप। तो कोई भी उंगली उठाता है तो वो उसको प्रूव करता है। जैसे आप हैकाथॉन जानते हैं कि जब इसके ऊपर क्या नाम है, वोटिंग मशीन के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर उंगली उठाई गई, तो इलेक्शन कमीशन ने हैकाथॉन ऑर्गेनाइज किया था और ये चैलेंज किया था, खुला चैलेंज दिया था कि कोई भी ये प्रूव करके दिखाए कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कैन बी हैक्ड एंड कैन बी मेड टू वोट फॉर अ स्पेशल पॉलिटिकल पार्टी। बट ये नहीं हो, मतलब कोई भी प्रूव नहीं कर पाया था, बट इलेक्शन कमीशन ने प्रूव कर दिया कि EVMs आर नॉन टेम्परेबल। उसके अलावा सॉल्यूशन इज टू फोल्ड। तो पावर ऑफ कंटेम्प्ट मांग रहा है, बट हम कह रहे हैं कि पावर ऑफ कंटेम्प्ट चाहे ना भी दिया जाए किसी को तो कोई बहुत ज़रूरत नहीं है, बट पावर टू कैंसिल इलेक्शंस दिया जाए। सब ब्राइवरी मेकिंग EC, तो EC को फुली इंडिपेंडेंट करना होगा एंड गिविंग इट मोर डिसिप्लिनरी पावर, इसको ज़्यादा पावर देनी होगी पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर। तो इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं अगले स्लाइड में। तो क्या है, टू डी रजिस्टर दी पॉलिटिकल पार्टी, डी रजिस्टर कर पाए, शुड बी टू गिव द EC द पावर टू पनिश द पॉलिटिकल पार्टीज को पनिश कर पाए, इंक्लूडिंग डी रजिस्ट्रेशन भी कर पाए, हु कमिट अ मेजर वायलेशन ऑफ देयर ओथ और इंडल्ज इन विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ लॉफुल ऑर्डर। क्या क्या, जैसे अगर वो अपने अकाउंट एंड ऑडिट रिपोर्ट सबमिट नहीं करते इलेक्शन कमीशन को, कितना एक्सपेंस किया इलेक्शन में, अगर इंटरनल पार्टी इलेक्शंस नहीं करते हैं, वॉलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट करती हैं, तो इलेक्शंस पॉलिटिकल पार्टी डी रजिस्टर भी कर पाए। ये पावर देनी चाहिए इलेक्शन कमीशन को, तो ये अभी तक नहीं दी गई है, इसकी हम मांग करते हैं, ये होना चाहिए। उसके अलावा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की एनफोर्स करने की पावर इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है, केवल नोटिस दिया जाता है और नोटिस का जवाब दिया जाता है और कुछ नहीं होता। ECI शुड बी प्रोवाइडेड विद द पावर टू ब्रिंग मॉडल MCC, इसको बोलते हैं MCC, इनटू फोर्स एंड पनिश पॉलिटिकल पार्टीज फॉर इट्स वायलेशन, ये पनिश कर पाए। टू गिव स्टैट्यूटरी, हम कह रहे हैं स्टैट्यूटरी बैकिंग देनी चाहिए MCC की, वो यानी कि एक लॉ इनेक्ट होना चाहिए कि जब भी इलेक्शंस की डेट अनाउंस हो तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की स्टैट्यूटरी मतलब एनफोर्समेंट हो जाए विदाउट MCC लॉ। इस लॉ के विदाउट एनीबडी ब्रीचिंग MCC कैन नॉट बी, तो उसको बुक नहीं कर सकते अगर, क्योंकि ये लॉ कोई नहीं है। ये एक बेसिकली ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स के हिसाब से आप मान सकते हो कि एक 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 मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक इलेक्शन कमीशन ने एक, जैसे कहते हैं ना, एक वो बन जाता है, मतलब जैसे पार्लियामेंट में भी बहुत सारे ऐसे वो क्या बोलेंगे उसको,
ट्रांजेक्शन और ऐसे रूल्स हैं जो कि कहीं रिटर्न में नहीं है, बट वो ऐसे ऐसे बिजनेस मतलब कोई कानून में नहीं है, बट वहीं पे ट्रांजेक्शन और बिजनेस रूल्स में लिखे हैं कि बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए, ट्रांजेक्शन को ऑर्गेनाइज करने के लिए बिजनेस के ट्रांजेक्शन को क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं। तो इसी तरीके से एमसीसी भी इलेक्शन कमी कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है। अगर ये स्टैट्यूटरी बैकिंग होगी तो उसके पास पावर होगी इलेक्शन कमीशन के पास टू टू पनिश समवन हु वायलेट दिस एमसीसी। कंट्रोल ओवर सोशल मीडिया, अपार्ट फ्रॉम प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया भी ऑल्सो भी ब्रॉट अंडर दी रेगुलेशन ऑफ ईसीआई, जो कि नहीं है अभी तक सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में भी आप बहुत इन्फ्लुएंस कर सकते हो वोटर्स को, तो सोशल मीडिया भी इलेक्शन कमीशन के परव्यू में लाना चाहिए। पावर टू डिसाइड डिफेक्शंस, अभी आपको पता है कि जो भी डिफेक्शन होता है पॉलिटिकल पार्टीज में, तो स्पीकर इज द फाइनल अथॉरिटी डिफेक्शन के लिए, है ना। तो ये कह रहे हैं कि इट शुड बी गिवन टू ईसीआई फॉर फ्री एंड फेयर डिसीजन मेकिंग। और जो ईसीआई के एक्सपेंसेस हैं डेट मस्ट बी चार्ज्ड ऑन दी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, चार्ज एक्सपेंडिचर हो जो नॉन वोटेबल हो, तो चार्ज एक्सपेंडिचर ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ईसी के एक्सपेंसेस को ताकि इसके पास फाइनेंसिस की प्रॉब्लम ना हो। अभी क्या होता है ना, ईसीआई को पैसा मांगना पड़ता है गवर्नमेंट से, तब मांगना नहीं पड़ेगा। तो आप देख लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। लॉ कमीशन की एक बार रिपोर्ट देख लेते हैं, जो लॉ कमीशन ने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में दिया था स्ट्रेंथनिंग द ऑफिस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए। द कमीशन इन इट्स रिपोर्ट suggested the ECI must be strengthened by giving equal constitutional protection in matters of removability, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। मेकिंग द अपॉइंटमेंट प्रोसेस कंसल्टेटिव, यानी कंसल्टेशन करके आपको अपॉइंटमेंट करना है। इसने और बोला टू एड अ न्यू सब क्लॉज टू दी 324 में एक 2A इंसर्ट कर दो, टू प्रोवाइड फॉर अ सेपरेट इंडिपेंडेंट एंड परमानेंट सेक्रेटरीट फॉर ईसीआई। ईसीआई के पास अभी सेक्रेटरीट नहीं है, इंडिपेंडेंट परमानेंट, जैसे लोकसभा राज्यसभा के पास है। राज्यसभा के पास 98 में है, बट इसके पास नहीं है। दिस विल फर्दर इंप्रूव द इंडिपेंडेंस ऑफ द ईसीआई। तो ना सेक्रेटरीट इसके पास होना चाहिए। सेक्रेटरीट का मतलब कि स्टाफ होता है इनके पास, पूरा पूरा अकाउंट्स कीपिंग होती है, पूरा स्टाफ होता है, पूरा एक सेक्रेटरीट होता है जहाँ पे सेक्रेटरीज बैठते हैं, बड़े बड़े सब अधिकारी लोग बैठते हैं, जो कि सारे इसके जो भी अथॉरिटी, जो भी इलेक्शन कमीशन रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रहा है, जो भी इलेक्शन कंडक्ट कर रहा है, तो वो सेक्रेटरीट हेल्प करता है हर चीज़ में। तो एक बहुत बड़ा सेक्रेटरीट होता है, परमानेंट सेक्रेटरी होना चाहिए, इंडिपेंडेंट एंड परमानेंट सेक्रेटरीट। अच्छा, कुछ चैलेंजेस भी हैं, ये सब जो हमने रिफॉर्म्स की बात की इनको इनेक्ट करने में क्या है। कॉलेजियन सिस्टम को अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो अदर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस के लिए भी ये डिमांड उठने लगेगी, जैसे अटॉर्नी जनरल, कॉम्प्ट्रोलर, कैग के लिए अटॉर्नी जनरल, जबकि इनके लिए ज़रूरत भी नहीं है, अटॉर्नी जनरल, कॉम्प्ट्रोलर, ऑडिटर जनरल के लिए, तो इनके लिए भी डिमांड उठने लगेगी। तो ये एक चैलेंज है कि गवर्नमेंट या तो यूनिफॉर्मली, तो गवर्नमेंट या तो यूनिफॉर्मली सबके लिए डिमांड करे, मतलब सबके लिए अपॉइंटमेंट के लिए ये कानून में परिवर्तन करे, चेंज करे, क्योंकि सबके लिए फिर ये डिमांड उठने लगेगी। तो ये एक चैलेंज है, गवर्नमेंट इसको देखेगी, देखना पड़ेगा कि अगर इलेक्शन कमीशन के लिए करना होगा तो फिर औरों के लिए भी आवाज़ उठ सकती है, तो सिमिलर डिमांड को भी मीट करना पड़ेगा। उसके अलावा एक इशू और है, कॉन्स्टिट्यूशनल डायलेमा। ये क्या है, जैसे हमने बताया 324(2) में द प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है टिल द टाइम देयर इज नो लॉ बीइंग मेड बाय द पार्लियामेंट फॉर दिस पर्पस, तब तक प्रेसिडेंट अपॉइंट करता रहेगा। ठीक है, कोई प्रोसीजर उसमें नहीं बताया। बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ सच लॉ, अब क्योंकि कोई लॉ नहीं है, जो स्टैट्यूटरी अपॉइंटमेंट प्रोसेस होता अगर लॉ बन जाता, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट है, जो कि एग्जीक्यूटिव कर रहे हैं बाय द प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव वाला प्रेसिडेंट कर रहे हैं, बट देयर इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट। अगर कानून बन जाता तो ये स्टैट्यूटरी अपॉइंटमेंट होता। इवन इन डिबेट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी, की डिबेट्स में भी ये आर्ग्यू किया गया था कि अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता रहे इन कंसल्टेशन विद पीएम विद द कंकरेंस ऑफ 2/3 ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द जॉइंट सेशन ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट ही रहने दिया गया था उसमें भी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स में भी। कॉलेजियम सिस्टम जरूर लॉ कमीशन ने बोला था, बट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स में केवल पॉइंट उठा था और ये आर्ग्यू किया गया था कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट ही रहने देते हैं,
और जो अपॉइंटमेंट है ये प्रेसिडेंट करे इन कंसल्टेशन पीएम विद द कॉन्करेंस ऑफ, कंकरेंस का मतलब होता है कंसल्टेशन में केवल कंसल्ट करना है, कॉन्करेंस मतलब कि आपको अप्रूवल लेना होगा 2/3 ऑफ दी मेजोरिटी ऑफ जॉइंट सेशन, यानी कि 67% की आपको मेजोरिटी चाहिए जॉइंट सेशन की। अगर वो अप्रूवल दे देता है तब आप इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा एक चैलेंज ये है कि सीईसी और ईसी का भी जो फंक्शनिंग है दैट इज़ रनिंग ऑन एन एडहॉक बेसिस पे है, क्योंकि सीईसी और ईसी की पावर्स अलग अलग की गई हैं, रिमूवल का प्रोसीजर अलग अलग किया गया है, ठीक है ना, और पावर्स अलग अलग दी गई हैं, और आई थिंक सैलरी में भी डिफरेंस है ईसी एंड ईसी में, तो जबकि वर्क वाइज देयर इज़ नो डिफरेंस। So, because everything is working on an ad hoc basis, so the appointments to both the position may differ according to the task they perform. तो टास्क को डिफाइन करना पड़ेगा, उनकी अपॉइंटमेंट्स को उस हिसाब से भी डिफ्रेंशिएट करना होगा। वो तभी हो पाएगा जब जब कोई कानून सरकार इम्प्लीमेंट करे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि एक कि कानून में इनको ये भी लिखना होगा या ये भी डालना होगा, प्रोविजनिंग करनी होगी कि प्रोविजनिंग करनी होगी टू डिफरेंशिएट द वर्किंग ऑफ सीईसी एंड ईसी। सो बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द पोजीशन ऑफ सीईसी एंड ईसी। तो सीईसी और ईसी की क्योंकि पोजीशन में डिफरेंस है, तो इसीलिए the parliament has to enact a law in which which will regulate the differentiation in working of by the CEC and EC, and which will regulate their working, as well as ensure that the salary, the removal procedure should be common, but the salary as well as the conditions of service may slightly differ of between the CEC and ECs. So there is a difference between the position of CEC and EC. The appointments to both the position may differ according to the task they perform. Therefore, to differentiate the process of appointment, which is still done on an ad hoc basis, because of absence of law, any law becomes a challenging task that needs to be addressed properly. So, to differentiate the position of CEC and EC, there must be a law which will differentiate the positions. Now, because there is no such law, that is why the position of CEC and EC, the process of appointment is being done on an ad hoc basis. So that is why this challenging task has to be resolved by the government of India and the parliament. So government has to enact a law by the parliament has to enact a law, you can say, for the appointment of chief election commissioner and election commissioners, so that the position of chief election commissioner and election commissioner may be regulated. The difference between the positions may be regulated. Okay. So with this, I'll end my lecture of the how the power of Election Commission of India may be increased. So in the next series of lecture, I'll be discussing about how the election, how the free and fair elections in our country can be conducted by the Election Commission of India. So what provisions or what reforms may be introduced in the elections. Till then, like and subscribe like my lecture and subscribe my channel. Until then, wait for the next lecture. Thank you.